Good morning, students. Today I am going to teach you my childhood, the story based upon the life sketch of APJ Kalam. In real sense, my childhood has been taken from the book Wings of Fire. It is the autobiography of APJ Kalam. APJ Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम के माध्यम से स्पेस में प्रोजेक्ट दिया गया, डिफेंस में उनका पार्टिसिपेशन हुआ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना गाइडेंस दिया और वे भारत की 11th प्रेसिडेंट बने 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. और Wings of Fire में उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में अपने बचपन की चर्चा की है. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैंने बताया कि उनका जन्म एक तमिल परिवार में हुआ जो मध्यम क्लास का था और यह शहर जो है रामेश्वरम है जो मद्रास में है. My father, Jalaluddin, had neither much formal education nor much wealth. मेरे फादर के बारे में कह रहे हैं कि न तो वो ज़्यादा शिक्षित थी और न उनके पास ज़्यादा धन था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. इसके बावजूद भी his father was possessing innate wisdom. Innate wisdom stands for जन्म से ही बुद्धिमत्ता का होना. And a true generosity of spirit, और दूसरे के प्रति उदारता दिखाना उनका स्वयं का काम था, स्वयं का नेचर था. He had an ideal helpmate in my mother, आशियामा. APJ कलाम के मदर का नाम आशियामा था और उनके फादर उनके मदर के साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहा करते थे. I don't recall the exact number of people she fed every day. अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि कितने लोगों को वो हर दिन खाना खिलाया करती थी. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. लेकिन उनका कहना है कि जितने उनकी फैमिली मेंबर्स में लोगों की संख्या थी उससे ज़्यादा लोगों को खाना वो प्रतिदिन उनकी माँ खिलाया करती थी. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. उनके बेसिकली 3 भाई थे और 1 बहन थी जिसमें उनका जो लुक था वो बिल्कुल भिन्न था, अलग था. Born to tall and handsome parents, लेकिन उनके मदर और फादर जो थे टॉल थे और हैंडसम थे. We lived in our ancestral house. वे लोग अपने ancestral house में रहा करते थे जो उनके ग्रैंडफादर के फादर बनाए हुए होंगे. Which was built in the middle of the 19th century. जो ancestral house था वो 19th century के middle में बनाया गया था. It was a fairly large pakka house and the house was cemented one, made of limestone and brick. वो limestone और brick से बना हुआ था. On the mosque estate in Rameshwaram, वह रामेश्वरम के mosque estate पे बना था. My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. Austere stands for simple, strict and severe. Though his father was not a wealthy person, though his father was not well educated, but it was well known to him how to
guide his family, how to dominate over his family members, and how to maintain his family members. So it was well known to him. It has been written here, my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. बेफालतू चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद नहीं किया करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. और लेकिन परिवार में जो आवश्यकताएं थी, भोजन के रूप में, क्लोथ्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में, वो सारी इंतजाम उनके फादर के द्वारा किया जाता था. In fact, I would say mine was a very secure childhood. और कलाम कहते हैं कि सच्चाई यह है कि उनकी व्यक्तिगत बचपन जो थी वो बहुत ही सुरक्षित थी, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली. बिकॉज बचपन में उन्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, पैसे के माध्यम से भी और इमोशनल अटैचमेंट, सेंटिमेंटल अटैचमेंट के आधार पर भी. As he was too much loved by his parents. Now, the third one, the Second World War broke out in 1913. Second World War शुरू हुआ 1939 में. When I was 8 years old, जब APJ कलाम का उम्र 8 years था. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tablet seeds erupted in the market. अब अचानक मार्केट में टैबलेट सीड कहने का मतलब है इमली का बीज का डिमांड बढ़ गया. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. अब बचपन में उनका काम था कि टैबलेट सीड को कलेक्ट करें और उसे प्रोविजन शॉप में मॉस्क स्ट्रीट में बेचें. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. और एक दिन के कलेक्शन के बाद जब वो टैबलेट सीड्स को बेचते थे तो उनको 1 आना मिलता था. 1 anna stands here for 6 spices. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the morning. उनके ब्रदर इन लॉ जो जलालुद्दीन थी, उन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो भी घटनाक्रम होती थी उसकी चर्चा करते थे, बाद में हेडलाइन के रूप में वो दिन मनी पेपर में पढ़ा करते थे. Our area being isolated was completely unaffected by the war. यहाँ कलाम साहब का कहना है कि जहाँ पर वो रहते थे वो एरिया बिल्कुल अलग था, जहाँ से वर्ल्ड वार का प्रभाव नहीं बन सके, जहाँ पर उनका प्रभाव नहीं बनता, और इसलिए उस जगह पर वर्ल्ड वार का कोई इम्पैक्ट नहीं बना. बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. लेकिन शीघ्र इंडिया ने एलाइड फोर्स ज्वाइन किया. यहाँ एलाइड फोर्स द आर्मीज ऑफ यूके, USA and Russia during the Second World War. तो बाद में इंडिया को भी एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ा. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले एलाइड फोर्सेस के रूप में इंडिया ज्वाइन किया. दूसरी बात यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज बंद कर दिया गया. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram route between Rameswaram and Dhanushkodi. अब उस कंडीशन में क्या था, रामेश्वरम और धनुषकौडी के बीच में जो प्लेस था रामेश्वरम रोड, वहाँ पर न्यूज़पेपर को रनिंग ट्रेन से बंडल में बांध कर फेंका जाना था. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब इसके कारण उनका जो कजन भाई थे
जो न्यूज़पेपर सेल करने का बिजनेस किया करते थे, उन्होंने एपीजे कलाम को अपने साथ लिया ताकि वो बंडल को कैच कर सके जब उसे ट्रेन से फेंका जाए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मुझे मदद किया था पहली बार अपने द्वारा सैलरी पाने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सेंस ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और 50 साल बाद भी उन्हें अपनी पहली सैलरी, अपनी पहले मेहनत की कमाई को प्राप्त करने वाले क्षण को याद करने के बाद गर्व हो रहा था अपने आप पर। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environments and trained in certain ways by figures of authority. अब यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट पर बात हो रही है कि हर समाज में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें अपने माता पिता के कुछ गुण नेचुरली मिल जाता है, जिसको इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और उस बच्चे पर सोसाइटी का भी इम्पैक्ट बनता है, खास करके अपने पेरेंट्स का इम्पैक्ट बनता है, जिसके गाइडेंस में वो बड़े होते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब वो बता रहे हैं कि जन्मजात गुण जो है ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन का उन्होंने अपने फादर से प्राप्त किया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और अपने मदर से अच्छाई में विश्वास करना सीखा, एंड डीप काइंडनेस, और लोगों पर दया दिखाना भी सीखा। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उनके जो 3 ब्रदर्स और एक सिस्टर थी, उन्होंने भी ये सारे गुण अपने मदर और फादर से सीखे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके 3 फास्ट फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। उन तीनों का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। दे वेयर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ एपीजे कलाम ड्यूरिंग द फेज ऑफ द चाइल्डहुड। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. All his friends were from Orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox Hindu Brahmin family का मतलब है कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली, because their parents were from Brahmin group, Brahmin caste. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि बच्चे के रूप में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया अपने दोस्तों के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस, जिस पर कोई रिलीजियस डिफरेंस हो या जिस पर पालन पोषण करने में कोई अंतर किया गया हो। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri. वास्तव में रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, मुख्य पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में रामानंद शास्त्री अपने फादर के पोस्ट को ग्रहण किया एज ए प्रीस्टहुड। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, जो एंटरटेन करता था विजिटिंग प्लेयर्स को। एंड शिव प्रकाशन became a catering contractor for the Southern Railways, और शिव प्रकाशन जो था Southern Railways का catering contractor बन गया। It means her friends were separated during the phase of high school, just after joining different places in different phases, and ultimately APJ Kalam
started his own journey by his own way, taking admissions and different colleges and proving himself the best one. The next part will be taught in the next video. Thank you very much.